Today, what we are going to learn is we will write a function or we will make a code in which it will calculate the number that we have inputted from using recursion first of all. So the topic is recursion, and we will write a formula for sum of n natural numbers using recursion, or we can also see it by loops, or we can also see the formula that we already have read in 11 12 or initials, that we will discuss everything. So, first of all, what is sum of n natural numbers? What is a natural number? This is the basic concept that we have to consider. Natural number starts with 1, and after that, we can go up to an infinite, and whole number starts with 0. So, to be noted is natural number starts with 1. This is very important for us because even I'm so mature, but I have gained a lot of knowledge. But sometimes I wouldn't say this, but sometimes I get confused about natural numbers and whole numbers. So first point to make clear is that natural number starts with 1. You can make a note, or you can also use your pen and paper and make notes just side by side. You can write. So what we have to do in a recursion, like sum of n natural numbers. So sum of n natural numbers. So what we have to basically do is we have to add every number up to infinite. So what, let's call that infinite number as n. So we have to add every number starting with 1 to n. So let me just ask you a question. What would be the number previous to n? I'll give you 3 seconds, like literally 3 seconds. Yes, it would be n minus 1, like n minus 1. So it wasn't tough though, और जिसका भी गलती हुआ है तो कोई बात नहीं, it happens, like it literally happens. So what we have to do is we have to add these numbers like 1 2 3 4 up to n minus 1 plus 1. Why we have written n minus 1? Because it's just the number previous to n. It's just the number previous to n. Like n minus 1, number previous to this would be n minus 2, and then it would come n. So we are basically adding. It's not a big deal. So what we did now, we just added up to n minus 1 plus 1. So let's make a let's make a variable, like variables. Let's assume this like a container, and I will write its name as sum. So the name of this is sum. In this sum, we will do is 1 plus 2 plus 3 plus up to infinite, like n times. Number before n would be n minus 1. Yes, this was a cross question. So by this, we can make like a function sum n, which is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. सो वी विल जस्ट, हम लोग ये सब जो लिखे हैं उसको बस अंदर डाल देंगे सम के अंदर. तो विल जस्ट असाइन दिस इन सम, which would be 1 plus 2 plus 3 up to n. ओके, यहाँ तक क्लियर? अरे कुछ नहीं किया अभी तक, बस असाइन कर दिए n तक. तो जैसे हम लोग असाइन कर दिए इसको n तक, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे n माइनस 1 लिखते हैं, या n को हटा के n माइनस 1 लिखते हैं, तो ये वाला जो लास्ट नंबर होगा वो भी n माइनस 1 ही होगा. सही है ना? और उसमें अगर हम लोग n ऐड कर देंगे प्लस n, मतलब
ऐसे उसमें अगर हम लोग n ऐड कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा? अरे कुछ नहीं किए, n इज इक्वल टू, बेसिकली क्या किए हम लोग, सम n इज इक्वल टू सम n माइनस वन प्लस n। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सम n को, सम n को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इज इक्वल टू सम n माइनस वन प्लस n। सम n माइनस वन तक क्या था, सम n माइनस वन तक क्या था, क्या था, क्या था, ये था पूरा। और n तक क्या हुआ, बस एक n ऐड कर दिए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं, वॉट वी here did is we just created, we just wrote that n minus 1 number and we just put it over that sum n function and we just added n so that sum n would be n minus 1 plus n. Now what we have to do is, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिकर्शन में कि वॉट वी, हम लोग को हमेशा जब भी रिकर्शन बनाते हैं तो हम लोग एक फंक्शन बनाना पड़ता है। तो उस फंक्शन का हमेशा दो चीज़ होता है, या तो एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है या तो एकदम छोटा वैल्यू जो कि एग्जैक्ट आंसर देता है। तो ये तो एकदम गांठ बांध लेते हैं हम लोग कि फॉर larger values we have to make a function, and for small values we have to make that exact number. So here in this case, for larger values which is infinite तक, infinite n क्या assume किया तुम लोग, infinite, तो for larger values sum n is equal to sum n minus 1 plus n, ये हम लोग का एक फंक्शन बन गया। और for small values जीरो, जीरो क्यों आया यहाँ पे, अगर सम n, n का वैल्यू क्या होगा जीरो, n इज इक्वल टू जीरो, हम होल नंबर का बात नहीं कर रहे हैं, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, n का वैल्यू बात कर रहे हैं, n का अगर जब जीरो करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो। सम का कोई वैल्यू नहीं आएगा जीरो, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को जीरो मिलेगा। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है रिकर्शन में, फॉर लार्जर वैल्यूज वी मेड अ फंक्शन एंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज वी मेड एन एग्जैक्ट आंसर विच इज जीरो। तो हम लोग अब इसको कोड में आते हैं, तो ये तो समझ गए, अगर n इज इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो। और n का वैल्यू जो हम लोग देंगे वो बहुत बड़ा है तो उसका फंक्शन होगा, तो फंक्शन होगा। अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं, कोडिंग पे आ जाते हैं। ये बेसिक सी प्लस प्लस सिंटैक्स है, लाइक हैश इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस, ये सब हम बाद में रिकवर करेंगे, कवर करेंगे। और हम अज्यूम करते हैं कि आप लोग को आता होगा। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंट आर बनाएंगे सबसे पहले, और फिर आर के अंदर लिख देंगे सम ऑफ थ्री। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और प्रिंट करा देंगे आर। ये बेसिकली थ्री क्या है, ये थ्री क्या है, इट्स बेसिकली वन प्लस टू प्लस थ्री। आउटपुट क्या आना चाहिए, सम का सिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्स कैसे आएगा, इसका कोड देखते हैं हम लोग। ये सम फन, पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, इंटीजर एक आर करके वेरिएबल बना, आर के अंदर सम फंक्शन बना। ये सम, अब हम लोग सम फंक्शन बनाते हैं। तो इंट सम इंट एन, इसके अंदर पहला कंडीशन था हम लोग का स्मॉल वैल्यूज के लिए, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो आंसर क्या आ रहा था, रिटर्न जीरो। और वही बड़ा वैल्यूज के लिए रिटर्न सम इनटू एन माइनस वन प्लस एन, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, एल्स रिटर्न सम n माइनस वन, फिर ये सम एक वैल्यू कम होके फिर इसको कॉल करेगा, फिर प्लस वन होगा, मतलब एक वैल्यू कम होगा। जैसे थ्री डाले हम लोग तो थ्री, इफ n इज इक्वल टू जीरो, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये बाहर जाएगा। तो रिटर्न क्या होगा, सम n माइनस वन टू प्लस n टू। ये रिटर्निंग फंक्शन बाद में कॉल होता है, ये बाद में बताएंगे रिकर्शन जब हम लोग पढ़ेंगे। इट्स ऑल वी आर डूइंग इज जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सम टू हो गया, फिर सम टू कॉल करेगा इसको, फिर देखेगा इफ n इज इक्वल टू जीरो, नहीं
फिर एक ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर सम टू n-1, 2 - 1 1, फिर यहाँ जाएगा, फिर देखेगा इज इक्वल 0 नहीं, फिर यहाँ पे 1, 1 - 1 0, फिर यहाँ 0 देखेगा, 0 इज इक्वल टू 0, यस, तो फिर अंदर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर रिटर्न कर देगा 0। तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, कॉल कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिकर्शन। यही फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो हम लोग एक बार आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या लगता है? 6 वुड बी द आउटपुट। लेट्स सी। 6 इज द आउटपुट। 3 बार रन कर दिए थे हम। तो यही था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। हम लोग इसमें फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं और एक फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का टास्क होगा फॉर लूप के थ्रू करना, और ये रहा फार्मूला के थ्रू अगर करना चाहेंगे तो। फार्मूला तो पता है, n × n+1/2, सिंपली लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, एक फंक्शन बना देंगे, इस सबको गायब कर देंगे और यहाँ लिख देंगे n × n+1/2, बस ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 6 आ गया, सेम ही था। तो हम फार्मूला के थ्रू भी दिखा दिए और उसके थ्रू भी दिखा दिए, रिकर्शन के थ्रू। तो टास्क होगा आप लोग फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल लूप, जो भी लूप लगाना है उसके थ्रू आप लोग सॉल्व करें ये क्वेश्चन। और मेरे को कमेंट करें नीचे, और कुछ डाउट आता है तो पूछे। तब तक के लिए बाय।